ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਲਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਜ਼ ਰੀਤੂ ਦੇਵੀ, ਸੰਜੇ ਲਖਨਪਾਲ, ਦੀਪਕ ਸਲਵਾਨ, सपना सलवान, सोनिया देवी, यसार सलवान, रिया सलवान, ईशानी लखनपाल, अक्षित लखनपाल, रिचा शर्मा, रुशील शर्मा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਤਲਣ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਪੰਡਿਤ ਸੰਤਰਾਮ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਗਿਆਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਕਲਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਲਵਾਨ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਲਵਾਨ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਰਾਣੀ, ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਡੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਲਵਾਨ ਨਾਰਵੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। 25 ਸਾਲ ਨਾਰਵੇ ਵਿਖੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਲਵਾਨ ਟਰੈਵਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਰੀਤੂ ਦੇਵੀ, ਦੀਪਕ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਪਕ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲਵਾਨ ਟਰੈਵਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, इस आत्मा को परमात्मा के चरणों में लीन करना। खाने पीने ऐशो आराम करने के लिए भगवान ने बहुत सारी शरीर बना रखे हैं, लेकिन एक ज्ञानवान सब कुछ समझना एक इंसान को ही बना रखा, एक जीव को बना रखा। एक वासना का पर्दा लगा हुआ है और यह भगवान से थोड़ा अलग है। एक वासना का पर्दा लगा हुआ है। ये हम सब लोग जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन जानबूझकर भी पाप कर्मों में हम लोग लग जाते हैं। जीव संसार में आता है क्या लेकर के आता है, क्या लेकर के आता है, क्या वो लेकर के जाता है। जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। और भैया सब चीज अपनी है और बाप जिस दिन हमारे सिर से चला जाएगा उस दिन अहमियत बच्चों को समझ आती है, पहले नहीं आती है, वो बाद में समझ आती है। भैया पहले तो वैसे ही बोलते हैं, पिता बोलता रहता है, कोई बात नहीं, ना बात भी नहीं सुनते। जिस दिन भैया जब नींद जब चली जाती है ना, जिस दिन पिता का जो हाथ है जो जिस दिन सर से उठता है ना,
फिर पता लगता है कि पिता क्या चीज थी। पिता, बाप तो बाप ही था, बाप तो बाप ही था। और किसी ने बड़ा अच्छा ही कहा है, पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है। मेरे भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है। सिखलाया आपने ही जीने का तरीका है। सिखलाया आपने ही जीने का तरीका है। अभी और सिखाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे तो ना जाना था जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है। आदमी सुबह पता है कि सुबह 9-10 बजे ड्यूटी पर निकलेगा, शाम को वापस 6 बजे घर पर आएगा, तो आंखें दरवाजे पर टिकी रहती है कि 6 बजे आना है, और आज वही एहसास लग रहा है कि सामने ही है, वो सामने ही है। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है। आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। मेरी दुनिया के सरताज, मेरी दुनिया के सरताज, आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इंसान जब चला जाता है, एक फोटो बनाई, घर में जाते ही लगा में, और जाते ही फोटो पे हाथ टांग, ऐसा ही होता है बिल्कुल। हाँ, ये हमारे पिताजी हैं, 2 अगरबत्ती रख दी, जला। अरे कदर करो, जीते जी करो, मान सम्मान जीते जी करो भैया, जीते सब कुछ। जब इंसान जब चला जाए ना, फिर भैया उसकी कदर पता लगती है क्या चीज। आज सर पर जो हाथ था, सर पर जो पगड़ी थी, आज वो हमेशा हमेशा के लिए भैया दीपक सलवान के सर से हमेशा के लिए बाप का जो साया था, हमेशा के लिए, हमेशा। इसलिए
एकजुट रहना चाहिए आदमी को, सब कुछ। और अंतिम समय आता है ना भैया, कोई कुछ नहीं कर पाता, ये सब भगवान के हाथ में, विधाता जी के हाथ में है। हानि लाभ मरण जन्म यश अप, ये विधाता जी के हाथ में है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुरनान, हानि लाभ जीवन मरण दस अपयस विधा, ये विधाता जी के हाथ में है। भगवान ने जितनी भी इंसान को आयु दी है उतनी ही भोग पाता है, उतनी ही वो श्वासें ले पाता है। जीवन है, चलता ही रहे। एक समय की बात है, एक बार एक राजा हुआ लुकमान, और बड़ा ही अच्छा चित्रकार था और योग विद्या भी वो जानता था। एक बार उसने ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव कि जिस दिन मेरी मृत्यु नजदीक हो उस दिन खबर कर देना मुझे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जिस दिन तेरा समय नजदीक आएगा तो तुझे खबर कर देंगे। समय निकलता गया, समय के अनुसार धीरे धीरे मृत्यु का दिन निश्चित किया गया लुकमान का। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, जाओ उनको खबर कर दो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके जो सेवादार थे आए और लुकमान को कहा कि भाई तेरी 4 या 5 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, जो कुछ करना है तो कर। तो मृत्यु नजदीक हो तो क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित को श्राप मिला कि तेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके संत की शरण में गए। जाकर के कहा, महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? राजपाट सब कुछ त्याग दिया। ना तो राजपाट का 2 पैसे किसी पर छोड़ के राजी नहीं, इतना मोह है। और सब यही रह जाना है, लेके कुछ नहीं जाना है, सब यही छोड़ जाना है। हाय मेरा। और बंधन का कारण भी यही है, बंधन का कारण भी यही है, मैं और मेरा, ये मेरा है वो मेरा है, बंधन का कारण भी यही है। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, जो कुछ करना है तो उपाय कर लो भाई, नजदीक है। उसने कहा ठीक है, हमारा जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक उस लुकमान ने अपनी ही सकल सूरत के 9 पुतले बनाए और 9 पुतले बना करके, कोई फर्क नहीं था अपने में और पुतलों में। जिस दिन उसका अंतिम समय था, यमराज ने अपने दूतों को भेजा लेने के लिए और उनके बीच में जाकर के योग माया के द्वारा अपनी श्वास को रोक करके बैठ गया। यमदूतों ने आकर देखा, एक को लेने के लिए आए थे, 10-10 विराजमान है, किसको लेकर जाए? खाली हाथ चले गए। यमराज के पास में गए, यमराज जी ने पूछा, महाराज लेके नहीं आए? बोले महाराज एक को लेने के लिए भेजा था, 10-10 विराजमान है, किसको लेकर जाए? यमराज जी आए, यमराज जी ने आकर देखा वास्तव में 10-10 विराजमान है। यमराज जी फटाफट ब्रह्मा जी के पास में गए और जाकर ब्रह्मा जी से कहा, है ब्रह्मदेव आपने सृष्टि बनाई और बनाते समय शायद भूल गए कि आपने एक ही सकल सूरत के इतने निशान बना दिए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने तो कोई ऐसा बनाया ही नहीं है, कोई ना कोई फर्क जरूर दिया है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर देखा वास्तव में 10-10 विराजमान। ब्रह्मा जी ने भगवान हरि का ध्यान किया, समझ गए पुतले हैं, पुतलों के बीच में विराजमान है। ब्रह्मा जी एक पुतले के पास में गए, खड़े होकर तारीफ करने लगे कि बनाने वाले ने पुतलों को इतने अच्छे ढंग से बनाया है, इतने अच्छे ढंग से कारीगरी की है, क्या बात है। दूसरे के पास में गई, बनाने वाले ने बहुत अच्छे ढंग से कारीगरी की है, परंतु एक कमी छोड़ दी। तीसरे पुतले के पास में गए, फिर ये कहा बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, एक कमी छोड़ दी है। जब बार बार एक कमी का नाम लिया, फटाफट निकल करके आया और कहा, ब्रह्मा जी देखो सामने पुतले में खड़ा हूं, क्या फर्क है इन पुतलों पर मुझ में? ब्रह्मा जी बोले, भैया कोई फर्क नहीं था, तू नहीं मिल रहा था इसलिए, फर्क तो कुछ भी नहीं। तो जितने भी श्वासें भगवान ने दी हैं
उतनी ही मनुष्य भोग पाता है, इससे ज्यादा नहीं भोग पाता है। और मनुष्य तो इतना उलझा हुआ है संसार में कि वो निकलना ही नहीं चाहता है। एक इंसान था, उसके 3 पुत्र थे, 3 बेटे थे, और इंसान ने अपनी जिंदगी में सारा काम जो था, सारा जीवन जो था, उसने लेन देन में, व्यापार के लेन देन में निकाला, व्यापार के लेन देन में निकाला, सारा माल इकट्ठा किया, सस्ते में खरीद लिया, बोला महंगा होगा तो बेच दूंगा इसको, महंगा होगा तो बेच दूंगा इसको। उसने कहा ठीक है, खरीद लिया, सारा माल एक कमरे में रख लिया। धीरे धीरे समय निकलता गया, वो बुजुर्ग जो था बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। बच्चों ने दिखाया, डॉक्टर बोले भैया कुछ ही समय का मेहमान है, सेवा करनी है तो कर लो। पिताजी लेटे हुए थे मंजी पर। अब बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए। पिताजी थोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगे, बच्चों को आवाज देने लगे, लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे थे। और जैसे तैसे उठने की कोशिश करने लगे, धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर पड़े। बच्चों को लगा पता नहीं क्या हुआ, बच्चे बाहर निकल करके आए, उठाया, पिताजी को रख दिया, लिटाया। पिताजी से पूछने लगे क्या हुआ पिताजी? पिताजी इशारा कर रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे, बच्चे इशारा कर रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे। एक बोला उसमें से ऐसा करो, डॉक्टर को बुला लेते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। दूसरा बोला ठीक है भाई, डॉक्टर को बुला लेते हैं। तीसरा बोला हो सकता है पिताजी ने किसी को धन दौलत दे के छोड़ रखी होगी या कहीं रख रखी होगी, इसके बारे में कहना चाहते हैं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया तो कहा कि महाराज हमारे पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। और जब बोलने का अवसर होता है ना भैया, तब तो अपने मुंह को हम बंद करके रख लेते हैं। कहते हैं बोलने को दी जुबान तो बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबान तो बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि नाम मुख को खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना उस दिन तुझे याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। जो अधम है, नास्तिक है, जो इस कर्म को नहीं करता है, कहते हैं उनके घर का पानी जो मदरा के समान माना जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर पितरों के निमित्त यह कर्म थोड़ा है ज्यादा है करना चाहिए, और भगवान ये कभी गणना नहीं करते मनुष्य क्या दे रहा है कितना दे रहा है, भगवान तो केवल भाव देखते हैं किस भाव से दे रहा है। और नहीं तो उनके घर को देवता पितृगण उनके घर को देखते तक नहीं, या उनके प्रकोप से दुखी दरिद्री, उनके क्रोध से दुखी दरिद्री होते हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अन्य लोग जो भी हैं इस प्रेत क्रिया को नहीं करते, वे सभी चांडाल के समान माने जाते हैं। इसलिए इस पवित्र प्रेत कल्प गरुड़ पुराण को सुनना चाहिए। सुनाता है या सुनता है, वे दोनों पाप से मुक्त होकर के दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। जो माता पिता की मृत्यु पर इस गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके माता पिता जो है मुक्त हो जाते हैं, पुत्र को मन चाहा फल मिलता है। जिसने ना गरुड़ पुराण सुना, ना गया श्राद्ध किया, ना मासिक वार्षिक श्राद्ध किया, ना व्रतोत्सव किया, उसे पुत्र कैसे कहा जा सकता है। इसलिए हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, उन ऋणों से कैसे मुक्त हो सकता है, अर्थात माता पिता का उद्धार कैसे कर सकता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में इस गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में सुनना चाहिए। यह दुख का नाशक है। यह गरुड़ पुराण पुण्य प्रदान करने वाला है, पवित्र है, पापों का शमन करने वाला है, सुनने वाले की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए यत्न पूर्वक इस गरुड़ पुराण को सुनना चाहिए। ब्राह्मण सुनता है तो विद्या को प्राप्त करता है, क्षत्रिय भूमि को, वैश्य धन को, शूद्र पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं गरुड़ पुराण की पूजा करने के बाद वस्त्र, आभूषण, गोदान, दक्षिणा सहित बांचने वाले की पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा करने से भगवान कहते हैं मेरी भी पूजा हो जाती, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। बोल विष्णु भगवान की जय।
श्री गुरुदेव महाराज की जय। ओम हरि ओम ध्यम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोकुलय शांतिरवनस्पतयः शांतिरविश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी ने 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। सभी ने अपने ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहु कुलवंत राय जी सलवान साहब जिन्होंने असीं सारे बड़े भाई साहब जो मैनू भी दसिया विजय सलवान जी मेरे बड़े भरा ने जो मेरे बड़े भाई साहब पूरे हुए बड़ा दुख महसूस होया क्योंकि मेरा विजय सलवान जी का मेरे बड़े भरा ने मेरे पिता जी समान ने मैंने हर जगह कोई सुख की दुख की घड़ी कितने भी हो मैनू आप मोहरे ला के मेरे नाल खड़े मोढे नाल मोढा जोड़ के जो दसिया मैनू भी बड़ा महसूस है पर उस परम पिता परमात्मा का हुक्म है तेरा भाड़ा मीठा लागे जही चिरी लिखिया तही हुक्म कमाए कल आवे नानका सदी उठी जाए। वह हुक्म है जोड़ा इंसान इस दुनिया ते है उन्हें जाना ही जाना है। पर मैं फिर सलमान साहब नहीं कहूँगा कि वो अपनी जी फुलवाड़ी है इनू संभाल के रखना अपनी फुलवाड़ी को और इन्हों बड़िया का सत्कार करना जो भी आपसी भाईचारा बना के रखन। मेरे वालों फिर परिवार में सारे जी आए जो परिवार में दुख की घड़ी तुम सारे शामिल हो सारे का तह दिलों धन्यवाद है।